everyone. Hi guys. Hello. Yes, so welcome to the session. And yeah, let's practice more LRDI's questions from the CAT perspective, CAT 2022 perspective. Even if you are preparing for CAT 21, the session will be helpful, and even for IPMAT. Right. So needless to say, even this session, because we are discussing the slightly basic caselets, so it will also be helpful for your SNAP and NMAT preparation. However, in this session, we are going to take up a moderate level of difficulty caselet, moderate to difficult कह सकते हो आप, जो आज caselet लेने वाले हैं. Hello. So I think सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, अभी भी कर रहे हैं. Hi, good evening guys. Hello. Welcome to the session. चलो तो शुरू करते हैं. Guys, let me share the PPT and we'll start with again some new puzzle so that you can get going. No, warm up करना जरूरी है starting में. Right. Fine. Before that, just note down the code CHART10. When you go for plus or iconic, don't forget to apply it. And you can also participate in the combat using the same code. Make sure that all of you have joined the Telegram group. It's Anikidmi_Ronak, very easy to find. Right. And my new batch has just started, and one more LRDI batch is coming up. Course is coming up, and it is starting from 25th September. So this is for 2022. Okay. Similarly for IPMAT also, I have new batches. So you can attend it. Right, you know about me, so just for your reference, and here is a puzzle. Yeah, बहुत टाइम पहले मैंने एक बार कराया था, but now we are doing everything once again. So let's take up. किसी ने सुना हुआ ये puzzle? Yes or no? Type it in the chat box if you have ever heard of this puzzle. No. Right. So great, let's see. So start thinking afresh and figure out something. Ritesh is saying yes. एक स्टूडेंट ने किया हुआ है. Ritesh, okay. Varun is saying yes. So hold on your answer, guys. Since you know, let others try for the puzzle first. Hitesh, okay. No, there is another guy, I believe. Ritesh also. Hello, hi, good evening. Oh, sorry, Hiteshi. Yes, Hiteshi. Yeah. Chalo. So दोस्तों, you are a king of an empire, है ना? What's harm in believing that? Right. Now you have a servant working in your palace. He works all the 7 days, and you only pay him in the form of gold bar. And you must pay the worker for his work every day at the end of the day. Now you have just one gold bar, okay? And you are only able to make 2 bricks in the gold bar. मैं इसको सिर्फ 2 कट कर सकता हूँ. So how will you pay the servant if the servant works for the equal time every day, and thus equal amount must be paid at the end of the day? हाँ, अरे माही, चलो ठीक है, आप वैसे करोगे तो क्या होगा? If you just make one cut vertically, and one cut यहाँ से horizontally ऐसे कट कर दिया, तो भी कितने पीस हुए? You just got 4 pieces, and 4 pieces are equal. Why? How will you pay every day? है ना? You can't send him empty-handed on any day.
You need to pay him for that day's wage. Right. मतलब उसको 7 दिन का आपको ये पूरा गोल्ड बार पे करना है. यू नीड टू पे द होल गोल्ड बार इन 7 days. ठीक है, 7 days में उसको पूरा गोल्ड बार मिलेगा. नो, यू कांट मेल्ट इट. नहीं, यू कैन जस्ट कट इट. सपोज यू हैव द इक्विपमेंट जस्ट टू कट इट. यू कांट मेल्ट इट. या So how will you do it, guys? उसको दे दो, वो मेल्ट कर देगा. अगर वो नेक्स्ट डे आया ही नहीं तो दोस्तों, अगर वो नेक्स्ट डे आया ही नहीं तो गोल्ड लेके चला गया. यू कैन डू इट दैट वे. ठीक है, अच्छा लगेगा आप अगर किंग हो और आपको कोई बेवकूफ बना के चला गया तो. So how will we pay him? चलो, जिसको भी पता है बताओ. Sir, after completing Lakshya batch for quants and LRDI, should I have to complete this Genesis batch series? या विशाल, absolutely it would be helpful. अगर आप ये अटेंड नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? तो in case if you feel prepared, you can leave it. या फिर अगर आपको और प्रैक्टिस करना है, which I believe you should be doing, ठीक है, तो आप अटेंड कर सकते हो ना. आपको हर रोज नए नए केस प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं. This question is out of box, absolutely. So someone has got it right. देखो, रितेश ने कहा कि 1, 2 and 4 ऐसे कट करने हैं. Guys, let's understand the puzzle. ठीक है, सपोज ये 7 सेंटीमीटर का है, तो आप क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर पे एक कट करोगे. ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे आप एक कट करोगे, फिर और 2 सेंटीमीटर का एक कट बनाओगे. सो दिस विल बी ऑफ 1 सेंटीमीटर, दिस विल बी ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर. अब आप क्या करोगे? फर्स्ट डे को उसको 1 सेंटीमीटर वाला पीस दे दोगे. देन सेकंड डे को आप 1 सेंटीमीटर वाला ले लोगे. ठीक है, एंड 2 सेंटीमीटर वाला दे दोगे. क्या ये समझ में आया? 1 सेंटीमीटर वाला आपने सेकंड डे को वापस ले लिया और 2 सेंटीमीटर वाला उसको दे दिया. थर्ड डे को, यस, थर्ड डे को आप क्या करोगे? तो उसको 2 सेंटीमीटर वाला दिया था, 1 सेंटीमीटर वाला और दे दोगे. तो अब उसके पास कितने हो गए? ये उसके पास में है, तो he'll have 1 centimeter, he'll have 2 centimeter, now he'll have 1 plus 2 centimeter, right? ठीक है, फोर्थ डे को क्या करेंगे? उससे ये 1 सेंटीमीटर भी वापस ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर भी वापस ले लेंगे और उसको 4 सेंटीमीटर का दे देंगे. तो उसके पास अभी सिर्फ 4 सेंटीमीटर का है. फिर फिफ्थ को क्या करेंगे? उसको 1 सेंटीमीटर वाला वापस दे देंगे, उसके पास ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर वाला था. क्या ये समझ में आया दोस्तों? सो दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग द सॉल्यूशन टू दिस पजल. हाँ, सो अंशुमन, इसलिए तो हमें ये सेशन अटेंड करने हैं कि ये जो है कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, तो बस अभी सोचना शुरू कर दो. ऐसे और 50 पजल कर लिए तो आपकी नैया पार. अभी क्लियर? हाँ गाइस, तो काफी सारे कैट क्वेश्चन में आपको ऐसे सोचना होगा. दिस इज वेरी कॉमन लॉजिक. अगर आप यहां पे देखोगे ना, 1, 2 एंड 4, इट्स नथिंग बट 2:0, 2:1, 2:2. ये जो 2 की पावर है ना, उसके कम से कम 3 से 4 पजल्स है. तो 2 की पावर रिलेटेड कम से कम 3 से 4 पजल है. सिमिलरली 3 की पावर रिलेटेड भी कुछ पजल्स है. इट हैज समथिंग टू डू विद पावर ऑफ 3. तो मैं आपको कराऊंगा ऐसे पजल आगे जाके. ठीक है, कुछ यहां पे होगे, कुछ प्लस में होगे. सो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग नॉट ओनली माय जेनेसिस बैच बट इवन प्लस बैच. नहीं तो आपको 40% यहां पे मिल जाएगा, बाकी का 60% आपका छूट जाएगा. आप खुद से भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट व्हाई टू वंडर अबाउट दैट? सो व्हाई नॉट टू हैव कंप्लीट प्रिपरेशन विद मी. ठीक है ना? तो प्लस बैच के जो ये है उसके टाइमिंग्स शाम को 8 बजे के है. तो देखो, आपके कैट या जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो,
कैट के लिए अभी मैं बता रहा हूं आपका सिंपल मंत्रा होना चाहिए 4 + 6 + 8. Now what does it mean by this? 4 PM का मेरा जेनेसिस बैच LRDI का अटेंड करो, 6 PM का मेरा जेनेसिस बैच कॉन्ट का अटेंड करो एंड 8 PM का मेरा हर रोज का प्लस बैच अटेंड करो. दैट्स इट. सिंपल मंत्रा. ये फ्री है, ये पेड है, तो उसके लिए आपको प्लस लेना पड़ेगा. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड चार्ट व्हेन यू गो फॉर दैट. नाउ लेट्स गो अहेड विद अनदर केसलेट. अब ये एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग केसलेट है दोस्तों. प्लीज गिव अ थॉट. You can use calculator for this. You can use calculator for this one. ठीक है, क्योंकि थोड़े से वियर्ड परसेंटेजेस दिए हुए हैं, तो why to think so much. कैलकुलेटर यूज कर लेना, क्योंकि कैट में अगर ये आया तो आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा. So go through the data guys. स्नेहा मैंने 2 ही ब्रेक किए थे अभी तक. तुम्हें ऐसा लगा मैंने बहुत ज्यादा ब्रेक किए स्नेहा? 2 ही ब्रेक किए थे. हाँ सुमित, प्लस बैच अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो उसमें अभी आपका क्लास रहेगा ट्यूसडे एंड थर्सडे शाम को 8 to 9:30 एंड दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट कोर्स. उसमें फिर आगे जाके 3 दिन हो जाएगा. सो 3 days क्वांट, 2 days LRDI. अभी 2 days रहेगा. कुछ भी नहीं दिया है, आपको फिगर आउट करना है दोस्तों. वही तो मैं बता रहा हूं, यही तो लॉजिक है. हेलो, सी आपको कुछ डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आपको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा इसमें. चलो लेट्स सी कितने लोग फिगर आउट कर पा रहे हैं. Let's start a poll of 120 seconds. You have 2 minutes time. All those who have just joined, this is the first question after the puzzle. So yeah, give a thought and figure out. Guys, this is not very difficult, by the way. This is actually easy.
especially when I have mentioned that you can use calculator. Sure. ठीक है, ओके गाइस, तो कैसे करेंगे इसको, राइट? तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज आपको समझनी थी कि 1800 इज द टोटल रेवेन्यू, ठीक है? तो उसका 33% कितना होगा? वन थर्ड, दैट इज 600. 16.66%, 300, 300, 450, 25% इज वन फोर्थ 450, तो ये बाकी का कितना आ जाएगा? 150. Isn't that so? These are the revenues. और ये मुझे पता है कंपनी ए का रेवेन्यू यही है, कंपनी बी का रेवेन्यू यही है, कंपनी सी डी ई, बट प्रॉफिट मार्जिन मुझे नहीं पता है किसका कितना है। बट यहाँ पे क्या लिखा है? ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन इज 10%। मतलब अगर मेरा रेवेन्यू 1800 है तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना होगा? दिस इज माई टोटल प्रॉफिट। डू यू अग्री विद दिस? टोटल प्रॉफिट मेरा इतना होगा। Now what is 27.78%? Now guys, एक चीज आपको बताता हूं, if you are good at your percentages, भले ही आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, you can just give a thought. 16.66% plus 11.11% is 27.7%. क्या ये नहीं कर सकते? तो मतलब ये 1/6, what is 1/6 of 180? 30. This is 1/9. What is 1/9 of 180? 20. तो ये कितना आ जाएगा? 50. So if you calculate, this will come out to be 50. Even if you don't have calculator, you should be able to break out this thing. क्योंकि देखो मुझे ऑप्शन में कहीं पे डेसिमल में है क्या? ऐसे कुछ लिखा है 32.49 करोड़, 19.87 करोड़, क्या ऐसे कुछ वैल्यूज है? नहीं, सारे मल्टीपल ऑफ 5 है। मतलब दिस विल टर्न आउट टू बी इजी वैल्यूज ओनली, करेक्ट? सो गाइस, सिमिलरली इफ यू जस्ट चेक नाउ, ये आपको 27.78 पता चल गया। अच्छा, ये तो 1/6 है, सीधा सीधा 30 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट 2/9. कैन आई से 22.22% इज 2/9, 1/9 इज 11.11%, तो ये 40 करोड़ हो जाएगा, करेक्ट? ये 40 करोड़ हो जाएगा। तो 22 अगर 40 है तो 19 क्या होगा? उससे थोड़ा सा कम, 35 करोड़। एंड ये आप कैलकुलेट करोगे, ये 25 करोड़ आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? सो अगर आप वैल्यूज देखोगे, इट विल बी 25, 30, 35, 40 एंड 50. दिस वाज द आंसर, है ना? यस। दोस्तों, so they don't want to trouble you with complicated calculations, though calculator is allowed, but still you can figure out without much efforts, right everyone? Yeah, okay, chalo. So now I'll give you, sir, first 25 कैसे? फर्स्ट 25 कैसे मतलब कौन सा 25? ये वाला, ये 25 वरुण? विच 25 आर यू आस्किंग? सुनो वरुण, देखो 16.67%, 1/6 तो आपको पता चल गया कि 30 करोड़ है, तो 13.89% इससे अप्रोक्सीमेटली 3% कम है। सो व्हाट इज 3% ऑफ 180? कैन आई से इट्स 5.4? अरे वरुण, एनीवन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, आप इतना इतना पता कर सकते हो। हाँ, अगर सपोज वैसे कैलकुलेशन नहीं भी करते हो, व्हाट आई एम सेइंग इज यू कैन जस्ट बाय अप्रोक्सीमेशन यू कैन मेक आउट, क्योंकि सारे वैल्यूज 5 के मल्टीपल में है, ठीक है? Yes, Mansi will discuss that. For timing, just try for this question. I have just calculated this percentage of 180. That's it. तो हमने सिर्फ यही किया है मानसी, और कुछ ज्यादा उसमें किया नहीं है। Still, if you want, you can watch that video once again. But right now, let's go ahead with this question and figure out. Now, this one is a nice question. You will have to analyze this data for this.
नहीं, मैंने इसका आंसर बताया ही नहीं है विशाल, मैंने इसका आंसर कहां बताया है? अब देखो तो सही क्वेश्चन। ओह सॉरी, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अरे अच्छा, फिर भी देखो 20% स्टूडेंट्स गलत आंसर मार्क कर रहे हैं। ओह शिट गाइस, सॉरी, आई थॉट कि यू आर फाइंडिंग द, हाँ ओके गाइज, एक सेकेंड, सॉरी, यहां पे आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी सी। चलो लेट्स मेक इट दिस वे, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी सी। हाँ आस्था, रिफ्रेश कर दो ऐप को तो आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी सी। तो अब मैं नया पोल शुरू कर देता हूं। हाँ एक सेकेंड रुको, ये तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन हो गया है ना, क्योंकि हमने लास्ट में लिख दिया था। रेवेन्यू तो सबका पता ही है, उसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है। Everyone, so let's try it once again. Good afternoon, sir. So, will you continue the classes after Genesis batch? Like if I attend your free classes regularly? So, user, there is no guarantee about what classes I'll continue. ठीक है, मतलब Genesis batch is a short duration batch. Complete preparation आपको जो होता है वो normally plus में मिलता है. However, you can keep attending different faculty session if you are okay with making mix and match. Otherwise, I'll suggest go for plus so that you can get guidance also, right? It's completely up to you. Sure, guys. So please now figure out this thing. What is the profit of company C? Revenue तो बहुत आसान था, 150 crore था यार. Yes, लक्ष्य मेरा खुद का आ रहा है, ठीक है। मेरा खुद का LRDI का मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूं फ्रॉम अराउंड 1st और 2nd ऑफ अक्टूबर, क्योंकि क्वांट तो मैं पढ़ा ही रहा हूं तो उसमें LRDI भी आ जाएगा। सो मैं आईपी मैट एंड कैट दोनों में पूरा क्वांट कराता हूं, पूरा LRDI कराता हूं, ठीक है, प्लस में। गाइस वेडनेसडे से एक नया सीरीज शुरू हो रहा है। I'm sorry guys. या सो मैं एक चीज बता रहा था आपको, जल्दी से ये ध्यान से समझ लो। फ्रॉम वेडनेसडे आई एम स्टार्टिंग अ 12 PM सीरीज, ठीक है। इट विल बी इन आईपी मैट कैटेगरी, मतलब कैट वाले भी अटेंड कर सकते हैं। इट विल बी इन आईपी मैट कैटेगरी, तो कैट वाले भी इसको अटेंड कर सकते हो, ओके राइट। तो मैं उसको बता देता हूं। या अविनाश, कीप लर्निंग मैन। 30 वालों के लिए, हाँ 30 वालों के लिए LRDI वो उधर करेंगे हम, ठीक है। नाउ गाइस, ये क्वेश्चन में इतने लाइंस क्यों ऐड करते हैं? लाइक दिस क्वेश्चन, फ्यू लाइंस आर इंपॉर्टेंट, रेस्ट आर नो यूज। नो, एवरी सिंगल लाइन इज इंपॉर्टेंट विशाल। आई डोंट नो हाउ यू हैव इंपॉर्टेंट, हाउ यू हैव इंटरप्रेटेड, बट आंसर इज दिस वन, ठीक है। दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन। चलो, हमें यहाँ पे कंपनीज के रेवेन्यू पता है, कंपनी के हमें रेवेन्यू पता है, और प्रॉफिट वैल्यूज पता है, बट वी डोंट नो कि
कौन सी कंपनी का प्रॉफिट क्या है और उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या है. So this is what we need to find out. Now see, look at this line. The division with the largest revenue has the least profit margin but not the least profit. अच्छा, least profit कितना है 25. तो लार्जेस्ट रेवेन्यू किसका है ई, उसका प्रॉफिट मार्जिन लीस्ट नहीं है, उसका प्रॉफिट लीस्ट नहीं है. यहां पे लीस्ट नहीं आएगा, मतलब यहां पे 25 नहीं आएगा. दिस इज व्हाट आई कैन से, राइट. तो उसके अलावा क्या आ सकता है, 30 आ सकता है, 35 आ सकता है, तो लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा. अगर मैं 30 लेता हूं तो ये 5% हो जाएगा अगर मैं लेता हूं तो, राइट. फिर द डिवीजन विद द प्रॉफिट मार्जिन हायर देन ऑल अदर्स जनरेट्स द लीस्ट प्रॉफिट. अब गाइज यहां पे मैं कौन से डिवीजन का हाईएस्ट प्रॉफिट ले सकता हूं, और जिसका सॉरी प्रॉफिट मार्जिन जिसका हाईएस्ट है उसका प्रॉफिट लीस्ट है. तो कैन आई से प्रॉफिट मार्जिन इज नथिंग बट, यहां पे जैसे लिखा हुआ है प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन हायर है बट प्रॉफिट लीस्ट है तो उसका रेवेन्यू भी लीस्ट होना चाहिए. तो कैन आई से चांस ऑफ वेरी हाई कि सी जो है ना 150 उसका लीस्ट प्रॉफिट ले लो. तो 25 ले लिया तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा 16.66% हो जाएगा. एंड दिस विल बी द हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन. क्यों, अभी आप कहीं पे कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले लोगे अल्टीमेटली ये बीट नहीं होगा. डू यू अंडरस्टैंड गाइस. अगर सपोज आपने ए में 50 ले लिया तो वो इसके बराबर हो सकता है बट उतना तो नहीं होगा. पर हमें क्या कहा था, द डिवीजन विद द हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन हायर देन ऑल अदर्स, मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन हैज द लीस्ट प्रॉफिट. मतलब जिसका प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट है उसका लीस्ट प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब उसका रेवेन्यू लीस्ट होना चाहिए. रेवेन्यू कम है प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो सकता है. क्या ये समझ में आया सबको, एक बार यस लिख दो अगर आपको समझ में आया तो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वंस अगेन मैं सिर्फ ये पॉइंट यूज कर रहा हूं, इससे मुझे पता चला यहां पे 25 होना चाहिए और ये 16.66% होना चाहिए. मतलब दिस इज द हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन एंड दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन वाज 25. आंसर फॉर दैट क्वेश्चन वाज 25. अभी क्लियर. चलो, सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड हैव टेकन दिस. सो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कैसे निकाला भाई. अगर प्रॉफिट 150 करोड़ है, सॉरी रेवेन्यू 150 करोड़ है, दिस इज रेवेन्यू. प्रॉफिट 25 करोड़ है तो प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, वेरी सिंपल लक्ष्य, यहां पे देखो, ठीक है. या okay guys, so before we go ahead just want to quickly tell you about the plus subscription plans for your reference. Here are the pricing plan. Do not forget to apply this code so that you can get 10% waiver. And these are the Iconic subscription plan for your reference. Iconic सिर्फ CAT में है, IPMAT में नहीं है Iconic. Okay, fine. This is for 2022. चलो, so try for this question. How much profit did company A make? So अभी थोड़ा सोच के करो, एक्यूरेसी पे फोकस करो दोस्तों, ठीक है.
Yeah. So guys, right. How much profit did company A make? अभी कंपनी ए का कैसे निकालेंगे, तो वापस वो टेबल पे आ जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड. सो आज तक क्यों तुम्हें पोल नहीं आ रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. आप रिफ्रेश करो ऐप को, ठीक है, या फिर आप बाद में प्लस सपोर्ट में भी कांटेक्ट कर सकते हो. यू आर अ प्लस स्टूडेंट, तो आपको सपोर्ट मिलेगा. दे विल रिजॉल्व दिस इश्यू. ओके. सो गाइस, हमें ये पता चला कि यहाँ पे 25 करोड़ आ जाएगा एंड प्रॉफिट मार्जिन इज 16.66%. राइट. अभी डेफिनेटली और किसी का 16.66% हो नहीं सकता, तो ए में डेफिनेटली 30 तो सॉरी, ए में 50 तो आ नहीं सकता, ए का 50 आ नहीं सकता. ये हमें पता चल गया, क्योंकि 50 आउट ऑफ 300 इट विल कम आउट टू बी 16.66, तो वो नहीं हो सकता. राइट. सो गाइस, हाउ विल यू फिगर आउट एज प्रॉफिट मार्जिन? कैन यू टेल मी? देखो यहां पे लिखा है टोटल रेवेन्यू आर दिस वन, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन इज दिस वन. यहां पे कहीं पे लिखा है एग्जैक्टली वन डिवीजन हैज द सेम प्रॉफिट मार्जिन एज द ओवरऑल कंपनीज प्रॉफिट. मतलब कोई एक डिवीजन ऐसा है जिसका प्रॉफिट मार्जिन 10% का है. एवरीवन, ठीक है. हाँ, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, बट वेट अ मोमेंट. कोई एक डिवीजन ऐसा है जिसका प्रॉफिट मार्जिन 10% का है. अब 600 है तो उसका 10% कितना होगा? 60. ऐसा कोई प्रॉफिट ही नहीं है. 300 है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 30. तो यहां पे 10% आ सकता है, या फिर अगर यहां 30 लिया तो यहां पे 10% आ सकता है, और किसी का 10% हो नहीं सकता. तो कहना से ए और डी में से किसी एक का 10%, मतलब रेवेन्यू 30 होगा. अब देखो यहां पे क्या कहा है एवरीवन, कंपनी डी जनरेट्स मोर रेवेन्यू देन कंपनी ई. तो कंपनी ई का कितना होना चाहिए था? 25 होगा, तभी डी का 30 हो सकता है. ठीक है, बट 25 तो सी का है, तो ई का 25 नहीं हो सकता, तो डी का 30 नहीं हो सकता. इससे हमें पता चला ए का जो रेवेन्यू, ए का जो प्रॉफिट है वो 30 होगा, और उसका प्रॉफिट मार्जिन 10% हुआ. क्या ये समझ में आया? दिस इज कॉल्ड अ लॉजिकल डीआई सेट. गाइस, आप इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं कह सकते. ठीक है. सो अब तक हमने थोड़े से इजी केस लेट किए थे, अभी हम थोड़ा 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 करके लेवल इंक्रीज करेंगे. राइट. ये सबको क्लियर है कि कैसे हमने ये निकाल दिया? ठीक है, वेरी सिंपल. सो मैं फिर से एक बार यहां पे लिख देता हूं दोस्तों जल्दी से. हमें पता चल गया सी का 25 है एंड 16.66% प्रॉफिट मार्जिन है. यहां पे 30 आ जाएगा एंड प्रॉफिट मार्जिन 10% आएगा. अब डी और ई के लिए क्या वैल्यू हो गए? तो ये तो 30 आ नहीं सकता, ये तो 30 आ नहीं सकता. तो यहां पे आप क्या ले सकते हो? फिर 35 लिया, तभी यहां पे 50 आएगा, या 40 या 50 कुछ भी आएगा. राइट. सो क्योंकि 25 चला गया, 30 चला गया, एंड डी इज ग्रेटर देन ई, तो मतलब अगर मैं ई का 35 लेता हूं तभी डी का 40 या 50 आएगा. आर गेटिंग दिस पॉइंट? इनफैक्ट यहां पे 40 भी आ सकता है, तो डी का 50 हो जाएगा उस केस में. तो आगे का जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, बट अभी के लिए आपके पास इतना है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कैट एग्जाम. हाँ, तो करेक्ट गौतम, दैट यू विल फिगर आउट कि डी का क्यों हम 15 नहीं ले सकते. बट अभी के लिए आप ये क्वेश्चन को ट्राई करो. चलो, हमें बी का भी निकालना है, तो पहले आप ये ट्राई करो. ठीक है. या व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बी? राइट. सो लेट्स गो अहेड विद दिस वन. टेबल दिखा दूं? ओके गाइस, हियर इज द टेबल. चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. आई हैव टू गो बैक टू आंसर स्लाइड बिकॉज ऑप्शन सबको नहीं दिख रहे हैं. ठीक है. या सो नाउ टिक मार्क द आंसर ऑप्शंस.
यस, करेक्ट, इट शुड बी 11.11%। अब कैसे निकालेंगे? तो गाइज अल्टीमेटली आपको यहां पे डी और ई का फिक्स करना पड़ेगा। द डिवीजन विद द लार्जेस्ट रेवेन्यू हैज द लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन बट नॉट द लीस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो लार्जेस्ट रेवेन्यू किसका है? इसका, तो उसका लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, अब गाइज यहां पे ही आपका पूरा वो फिक्सअप होगा। तो यहां पे हम क्या वैल्यू ले सकते हैं? ई के लिए क्या वैल्यू ले? ठीक है, हमें उसका प्रॉफिट मार्जिन लीस्ट रखना है। ठीक है, अगर मैंने यहां पे 35 ले लिया, अगर हम यहां पे 35 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर आप 35 लेते हो या 40 भी लेते हो, अल्टीमेटली इसका ही लीस्ट होगा दोस्तों, अल्टीमेटली इसका ही लीस्ट होगा ना। तो उसे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि बाकी सबका तो आपका। अच्छा, अगर हमने यहां पे 40 ले लिया और यहां पे 35 ले लिया तो क्या हो जाएगा? देखो, 40 अपॉन 60 एंड 35 अपॉन 450, सॉरी 40 अपॉन 60 एंड 35 अपॉन 45, तो क्या होगा गाइस? कैन आई से ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा? नहीं, सॉरी, अल्टीमेटली ये वैल्यू ही ज्यादा रहेगा ना। दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर, इजंट दैट राइट? डू यू ऑल अग्री? तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एक और चीज है कि अगर अगर हमने यहां पे 35 लिया, एक सेकेंड। हाँ गाइस, अगर यहां पे 35 लिया, यहां पे 40 लिया, तो यहां पे आप 50 लोगे, ये कर सकते हो आप, करेक्ट? राइट। अगर मैंने यहां पे 50 ले लिया और यहां पे 40 ले लिया तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कंपनी डी जनरेट्स मोर रेवेन्यू, नहीं, उससे भी आपको कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। द डिवीजन विद द प्रॉफिट मार्जिन हायर देन ऑल अदर्स, दिस पॉइंट इज टेकन केयर। लार्जेस्ट रेवेन्यू हैज द लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, लार्जेस्ट रेवेन्यू हैज लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे आप 35 ले लो या 40 ले लो, अल्टीमेटली इसका प्रॉफिट मार्जिन लीस्ट रहेगा। कंपनी डी जनरेट्स मोर प्रॉफिट्स देन कंपनी ई। अच्छा दोस्तों, देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। हाँ, ठीक है, कंपनी डी जनरेट्स मोर प्रॉफिट्स देन कंपनी, करेक्ट। तो यहां पे 35, यहां पे 40, यहां पे 50, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 40, सॉरी, तीन केसेस बन जाएंगे ना, 35, 50 एंड 40 ऐसे लिया, करेक्ट। इससे क्या हो जाएगा? डी का देखो, अगर यहां पे 50 लिया, अगर यहां पे 50 लिया तो डी का प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट हो जाएगा, 16.66 हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई हमें पता चला यहां पे 50 नहीं आ सकता। अभी क्लियर? अगर यहां पे 50 नहीं आ सकता तो यहां पे 40 आएगा, तो यहां पे 35 आएगा और यहां पे 50 आना चाहिए। क्या ये समझ में आया दोस्तों? दैट वाज द कैच, राइट? दैट वाज द कैच। तो इसलिए यहां पे आपको पता चला कि आपके प्रॉफिट्स हो जाएंगे ये 25, ये 40, ये 35 एंड ये 50, विच इज नथिंग बट 11.11%, 1/9, right? So once you have figured out this, nothing much is left in the case. I'm sure you can easily answer this question. How much profit did company E make? कंपनी E का कितना था? 35 करोड़। अभी क्लियर दोस्तों? यस, चलो, now let's take a different caselet, थोड़ा अलग केसलेट लेते हैं। इट्स अबाउट प्रेफरेंस, ठीक है, या बट बिफोर दैट प्लीज नोट डाउन द शेड्यूल एंड कीप अटेंडिंग सेशंस लाइक दिस, राइट? गाइस ट्राई फॉर दिस वन। ये मैंने लक्ष्य बैच में कराया था, आगे क्या जेड का क्वेश्चन है, बट हम लोग काफी लोगों ने नया शुरू किया है। So for you, it will be a completely new caselet. So take 2 minutes time to discuss, to understand it, and then we'll discuss it.
मैंने कहा ना ये पहले किया हुआ है, मतलब राइट, बट वी आर स्टार्टिंग कंप्लीटली न्यू, सो ऐसे एक आध दो सेट देयर मे बी रिपीटिशन, क्योंकि दैट वाज फॉर 2021, नाउ दिस इज फॉर 2022, राइट। कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं गाइस जिन्होंने किया रहता है, मतलब मैंने देखा है हार्डली 1 or 2 स्टूडेंट्स। जस्ट मोमेंट, आप देख लो इसको, मैं पोल शुरू करता हूं। या लेट्स स्टार्ट द पोल। गाइज इस बार वेडनेसडे भी सेशन होगा, विल हैव सेशन ऑन वेडनेसडे आल्सो, जेनेसिस बैच। ओके, नॉर्मली जेनेसिस बैच हमारा वेडनेसडे नहीं होता है, पर इस बार वेडनेसडे होगा। सो I'll keep posting this details on the group, तो आप ग्रुप को थोड़ा ट्रैक करते रहना। So this is a nice, interesting question. I don't know how many of you could figure out this. How many managers would get their rooms as per their best preference? Guys, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस का टोटल कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो उसमें आप प्रेफरेंस का टोटल कर सकते हो उनका। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर 1 को रूम नंबर 302 चाहिए, तो उसको प्रेफरेंस 1 कह दो, 2 and 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 and this is 5 and so on so forth, right? तो आप रूम ऐसे अलॉट करोगे कि ये प्रेफरेंस का टोटल जितना मिनिमम आए उतना अच्छा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप प्रेफरेंस का टोटल जितना मिनिमम आए उतना अच्छा है, मतलब जिसको जो प्रिफर्ड था वो उसको मिल गया, करेक्ट? तो लेट्स सी हाउ टू डू अलोकेशन। सो गाइस, सबसे पहले आप क्या करोगे, सो यू विल चेक फॉर द रूम, जैसे रूम 303, इट्स नो वंस फर्स्ट प्रेफरेंस, तो कहना है ये हम असाइन कर देंगे, ये हमने असाइन कर दिया। डिड यू गेट दिस पॉइंट? देन रूम 301, इट्स नो वंस फर्स्ट प्रेफरेंस, तो ये असाइन कर दिया, करेक्ट? ओके, अब आता है रूम 302, ठीक है? तो हम इसको कौन सा असाइन करेंगे? अभी देखो 302 अगर मैंने इसको असाइन कर दिया, यहां पे सपोज मैंने 302 असाइन किया, राइट? तो क्या हो जाएगा, इसको अभी मुझे 303 असाइन करना पड़ेगा और इसको 305 असाइन करना पड़ेगा। कैन आई से दैट विल बी फाइन? डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो अल्टीमेटली 3 लोगों को उनका प्रीफर्ड रूम असाइन हो सकता है, करेक्ट? 3 people will get that preferred room। ये दो में से ये दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। इट वॉज वेरी इजी, करेक्ट? अब बाकी के असाइनमेंट आपको थोड़ा सोच के करने होंगे। दिस वॉज द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द बंच, ठीक है? चलो, सो हियर इज वन मोर क्वेश्चन, लेट्स सी। अब इसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा समय देता हूं।
exactly what I mentioned in the previous question, that this is what you need to take care of. Just a second, guys. Sure. सो या वेरी सिंपल, यहां पे ये असाइन कर दिया, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, फिर इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस अगर हम देते हैं तो फिर इसको ये रूम असाइन करेंगे सेकंड प्रेफरेंस वाला, ठीक है, और इसको सेकंड प्रेफरेंस वाला असाइन करेंगे. तो कहने से इन दिस केस योर टोटल विल कम आउट टू बी 7. इन नो केस इट कैन बी 5 और 6. इट हैज टू बी 7. गौतम इज सेइंग नो. क्या हो गया गौतम, बोलो, कुछ और तरीके से करना है? MI को M1 को 302. अच्छा, हाँ हाँ गाइस गाइस गाइस, ओ सॉरी, ठीक है, राइट. 302 किसको देंगे? M1 को देंगे. करेक्ट, योर पॉइंट इज वैलिड. क्योंकि सी हमने 303 ऑलरेडी असाइन कर दिया है, तो इसका ये प्रेफरेंस चला गया. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको 302 दे देते हैं, फिर इसको 304 और इसको 305. ठीक है, नाउ इट्स करेक्ट. नाउ इट्स करेक्ट. यस. सो या 7 आएगा. आई एम सॉरी, हाँ 303 असाइन था. एब्सोल्युटली करेक्ट. गुड. Chalo, so let's take one more question. Someone had a query. Let me address. Where can we start preparing for LRDI? Can we download and practice from Lakshya Batch DPP from Tiny URL? Lakshya Batch के DPP नहीं है, Lakshya Batch के sessions है माही. So you can start going through Lakshya Batch sessions on app. And yeah, if you want, you can download the lecture notes first without annotation, and then you can try to solve them by your own, and then you can watch the Lakshya Batch. You can also do it this way. गाइस, आप LRDI के अंदर पहले पीपीटी डाउनलोड कर लो, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर आप वीडियो देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि क्या बता रहे हैं. या फिर आप वीडियो रन करो, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वीडियो रन करोगे तो पोल भी आएगा, तो पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप. तो डाउनलोड करने से पोल में पार्टिसिपेट करके चेक करना बेटर है कि भाई मेरे कितने सही हुए.
ठीक है. So suppose that manager M2 decides not to join the new zonal office and manager M6 takes his place. ठीक है. And M6 has the, so M2 गया और उसकी जगह पे M6 आ गया. M6 के preference है 1, 2, 3 and 4. In this case, what would be the sum of preferred ranking allotted to the managers, right? So guys, now there is a competition. ठीक है ना? Now there is a clash. Everyone, yeah. नहीं 21 के लिए, सी दिस इज इंटेंडेड फॉर कैट 2022 स्टूडेंट्स, स्नैप 2021 स्टूडेंट्स एंड आईपीमैट 2022 स्टूडेंट्स. बट अगर कैट 21 भी इसको अगर अटेंड करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? कैट 21 वाले भी इसको अटेंड करते तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है. सो डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स. ये देखो, तुम्हें जो एग्जाम लिखना है उसके रिलेटेड तुम्हें सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अभी क्लियर? Yeah, Vishal, matlab, spend your time and energy on this one rather than thinking the other things. So Wednesday new series LR का है, quant का. Okay, it is going to be, yeah, it is going to be a surprise. कल तक आपको प्लान मिल जाएगा. ग्रुप पे मैं प्लान रिलीज कर दूंगा उसका पूरा. ठीक है. VRC, अच्छा अंचिता, is that what you want me to do? VRC शुरू कर दूं? ठीक है. A for apple, B for boy. Right. Don't tell me कि सर इतना बेसिक से क्यों सिखा रहे हो फिर. ठीक है. ठीक है. चलो. So guys, coming to this one, M6 1 2 3 4 ये प्रेफरेंस है. प्रेफरेंस रैंकिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. गौतम, मतलब आप क्या करोगे? न्यूमेरिकल वैल्यू, सी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गया, राइट? मतलब मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस 1 है, फिर सेकंड प्रेफरेंस मेरा रूम 2 है. ठीक है. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना. दिस इज माय हाईएस्ट प्रेफरेंस, देन सेकंड हाईएस्ट, देन थर्ड हाईएस्ट एंड सो फोर्थ. नहीं यार, प्रेफरेंस देखो, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज से ऐश्वर्या. ठीक है. फिर सेकंड प्रायोरिटी इज कैटरीना, राइट? अब आपको समझ में आएगा. थर्ड प्रायोरिटी इज से अनुष्का. फॉर व्हाट? फॉर नॉट गेटिंग मैरिड गाइस, फॉर वाचिंग द फिल्म्स. I'll prefer Aishwarya Rai's film first, then Katrina's and then Anushka's. So can I say my preferences in decreasing order are this one? This is my highest priority. ठीक है. Once again, not in terms of getting married, guys. I'm already married, and this is my lowest priority. तो इसको आप क्या कहोगे? highest to lowest जाते हो तो क्या हो गया? Decreasing हो गया कि नहीं दोस्तों? अभी चमका सबको? Is that clear? अभी नहीं भूलोगे, राइट? इसलिए मैं ले आया. मुझे पता है अगर आप ऐश्वर्या, कतरीना, अनुष्का को जोड़ दो मतलब अब नहीं भूलोगे. ठीक है, राइट? हाँ ठीक है. ओके, आगे और टफ क्वेश्चन आए तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए सनी को भी ले आऊंगा, डोंट वरी, फिर तो पक्का नहीं भूलोगे. राइट? चलो अभी के लिए हम यहां तक ही रुक जाते हैं. ओके. मैं सनी देओल की बात कर रहा था बाय द वे. ठीक है, डोंट मिस इंटरप्रेट मी. Okay, ठीक है. So guys, once again now, can you tell me how will you assign this one? ठीक है, जमाना कितना बदल गया है. एक आज से 10 साल पहले जब सनी की बात होती थी ना तो लोगों को घातक याद आता था, सनी देओल याद आता था. आजकल तो लोग क्या ही सोचते हैं, राइट? तो इसे कहते हैं जमाना बदल गया, राइट? करेक्ट. ओके. फाइन. तो अरे दोस्तों मुझे ये बताओ, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ हम प्रेफरेंस कैसे अलॉट करेंगे? M1, M6, M3 फर्स्ट प्रेफरेंस, करेक्ट? M1, M6, M3 फर्स्ट प्रेफरेंस, इज इट ओके? ऐसे करके देखते हैं. तो M3 को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, मतलब यहां पे नंबरिंग लिख देता हूं. चलो 1 1 एंड 1.
नहीं, क्योंकि इसका 2 यहां चला गया तो इसको भी 2 आएगा, फिर इसको 3 देना पड़ेगा, तो इसको 1 नहीं देते हैं। नहीं गाइस, M5 को ही 1 देना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस? हमें यहां पे देना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका सीधा थर्ड प्रेफरेंस आ जाएगा, क्योंकि 2 भी चला गया है। करेक्ट। फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको इसका सेकंड प्रेफरेंस दे देता हूं। करेक्ट, इसको इसका सेकंड प्रेफरेंस दे दिया, तो अब मुझे इसका थर्ड प्रेफरेंस यहां पे देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको 1 दे दिया है, तो अभी मैं इसको इसका थर्ड प्रेफरेंस दे देता हूं। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 4 5 एंड 8। अरे 8 हो सकता है ना, इस पे कोई गलती है क्या? M6 का 4 है क्या? नहीं 3, अच्छा 3 यहां चला गया, ओ ओ करेक्ट, इसलिए हमने 3 दे दिया है। तो इधर वे इफ यू लुक एट दिस टोटल विल कम आउट टू बी 9। प्रेफरेंस का जो टोटल है 1 + 1 + 2 + 1 + 4 ऐसे आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, राइट, ओके, ठीक है। चलो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, फिर से एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, थोड़ा सा यहां पे मैं ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं उसको। हाँ एक चीज समझो, अगर हम यहां पे इसको ये तो असाइन कर ही देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस असाइन कर देंगे, इसको भी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर असाइन कर देते हैं, क्योंकि इसका 303 आ गया, फिर सीधा 304 आ जाता। फिर अगर मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस यहां असाइन करता हूं, राइट, ये चलेगा, 2 आ गया। अच्छा अभी इसको क्या असाइन करेंगे, तो इसको प्रेफरेंस नंबर 2 असाइन करेंगे, ठीक है, और फिर हमें इसको अल्टीमेटली 4 ही असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ट्राई टू डू इट इन डिफरेंट वे एंड सी द मिनिमम टोटल विल कम आउट टू बी 9 ओनली। करेक्ट, आपका मिनिमम टोटल 9 ही आएगा। कोई 3 लोगों को उनका मेन प्रेफरेंस मिलेगा, एक को सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा और दूसरे को चौथा, या फिर कोई 3 लोगों को 1 मिलेगा और 2 लोगों को थर्ड प्रेफरेंस भी मिल सकते हैं। आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, इसमें 3+3 भी आ सकता है शायद, तो एक बार चेक कर लेना, आपको पता चलेगा, राइट, है ना, चेक कर लेना वो। तो दैट्स इट गाइस, एज फार एज दिस सेशन गोस। अभी हम मिलते हैं 6 बजे, ठीक है, बट प्लीज अटेंड दिस मॉक टेस्ट मैराथन, उसके लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वंस अगेन कोड SHAR10 वो याद रखना, एंड प्लीज पार्टिसिपेट इन द कॉम्बैट ऑल्सो, डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर अगेन विद कोड SHAR10। देखो काफी जगह पे आपको ये कोड की जरूरत पड़ेगी, इफ यू वांट टू फॉलो मी, ये कोड भी आप फॉलो करना, जहां पे कुछ भी पूछे वो डाल देना, राइट। हाँ, एंड जैसा मैंने कहा, ऐप पे 12 PM का सीरीज आ रहा है, 12 PM सीरीज फ्रॉम वेडनेसडे, of course it will be slightly different than the other series, okay, तो हम उसका भी करते हैं प्रिपरेशन। चलो that's it group, hope all of you are part of that। From here you can watch my previous videos। thank you guys, see you at 6। yes, Jatin, what's your doubt? बोलो जल्दी, Jatin post करो, 30 seconds। what's your doubt? Don't forget to like the session guys, please thumbs up button दबा देना and share it with your friends also। 6 PM को आज मैं लास्ट डिजिट, नंबर सिस्टम का लास्ट डिजिट कराने वाला हूं, जेनेसिस का क्वांट। तो आप पहले तो ये ग्रुप में आ जाओ दोस्तों। नहीं, LRDI 4 days अ वीक होगा, 4 days अ वीक, 4 to 5 days, मतलब मंडे टू फ्राइडे पकड़ लो, सैटरडे तो नहीं होगा, तो गाइस मंडे टू फ्राइडे पकड़ लो, ठीक है। चलो फाइन गाइस, सो दैट्स इट, बाय बाय, ठीक है।